So hello students, here in this video we are going to discuss some important MCQs from the history civics, especially from the civics. Okay, but students, before starting this video, let me tell you, if you have not subscribed our channel till now and you are new to the channel, then please subscribe it and press the bell icon so that you can get all the videos of your ICSE class 10th geography and of history civics. Okay, so students, without wasting our time, let's get started. So question number 1, students, law making wing is called. First option legislature, second executive, third judiciary, and fourth government. Okay, so here students, law making wing is called legislature. First option is the correct option, legislature. Okay, now students, question number 2 here, and your question number 2 is the governing wings is called. First option legislature, second option executive, third option judiciary, and fourth option government. So here students, the governing wing is called executive. What? Executive. Okay, so next question students, question number 3, the wing that dispenses justice is called. The wing, okay, here typing mistake, that dispenses justice is called. First option legislature, executive, judiciary, and government. So here we have students, third option judiciary. Okay, judiciary is the correct answer. Judiciary is the wing that dispenses justice. Next question students, question number 4. Okay, question number 4 here, in a federal system of government, all the administrative power, first option is only with the central government, second option is only with the state government, third option are divided between central and state governments, and is with the प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. कहने का मतलब क्या है बच्चों, फेडरल गवर्नमेंट में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होते हैं वो किन के पास होते हैं. यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिया गया है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो डिवाइड रहते हैं बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक्स इज द फाइनल इंटरप्रेटर एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट ऑप्शन पार्लियामेंट, सेकेंड ऑप्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड फोर्थ ऑप्शन here option is incorrect students. Here you have Supreme Court of India. Okay, it means Supreme Court. Okay, so students, here Supreme Court is the final interpreter and the guardian of the constitution. Okay, who is the guardian of the constitution? Supreme Court. Okay, so typing mistake here. Question number 6 students, here question number 6, parliament is and blanks organ of the government. parliament कौन सा organ है? executive है, judiciary है, legislative है, या फिर एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, तीनों का तीनों यही है. सो बच्चों मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट इज ए लेजिस्लेटिव ऑप्शन नंबर 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द पार्लियामेंट. यानी कि पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये कौन सा सेंटेंस कहिए या फिर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इट इज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, इट मीन्स स्टेटमेंट. दूसरा, इट कंट्रोल्स यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी करेक्ट. इट कंट्रोल द नेशनल बजट, ये भी करेक्ट. सो बच्चों, ऑल द अबव ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि तीनों का तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. आगे बढ़ते, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि यहाँ पर हम आपको तैयार करते हैं ICSE क्लास 10th के एग्जामिनेशन के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, हियर क्वेश्चन नंबर 8, द 3 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का 3 कॉन्स्टिट्यूएंट. पहला ऑप्शन लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर. दूसरा ऑप्शन लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट. तीसरा ऑप्शन लोकसभा, राज्यसभा एंड गवर्नमेंट. और चौथा ऑप्शन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट. विच आर द 3 constituent of parliament of India, or you can say parliament. Okay, so here students, question number 2 is the correct option. Lok Sabha, Rajya Sabha and the president are 3 constituent of the parliament. आगे बढ़ते हैं बच्चों, question number 9 here, and your question number 9 is the prime minister is the member of, first option Rajya Sabha, second option Lok Sabha, third option both of them, और चौथा ऑप्शन none of them. Okay, यानी कि बच्चों पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर जो है किसका मेंबर है, राज्यसभा का, लोकसभा का, या फिर दोनों का, या फिर किसी का भी नहीं. तो मैं आपको बता दूं बच्चों, प्राइम मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ लोकसभा. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हियर, द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज. यानी कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसका लोअर हाउस कौन सा है. पहला ऑप्शन लोकसभा, राज्यसभा,
दोनों ही है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, लोकसभा राज्यसभा बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो बच्चों मैं आपको बता दूं लोअर हाउस इज लोकसभा। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा? फर्स्ट ऑप्शन 582, सेकेंड ऑप्शन 552 and third option 252 members and fourth option 525 members. So students, the maximum strength of the Lok Sabha is 552 members. 552 members. Now next question students. क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी मेंबर्स मस्ट बी फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? यानी कि लोकसभा में बच्चों, लोकसभा में कितने मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होने चाहिए? पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4। ओके, सो हियर स्टूडेंट्स इट इज ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 13 है एट प्रेजेंट हाउ मेनी मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय स्टेट्स? यानी कि आज का समय कितने मेंबर्स को डायरेक्टली लोकसभा में इलेक्ट किया जाता है? पहला ऑप्शन 520, दूसरा ऑप्शन 530, तीसरा ऑप्शन 540 और चौथा ऑप्शन 550। सो स्टूडेंट्स हियर द करेक्ट ऑप्शन इज 530। आज का समय में डायरेक्टली स्टेट से 530 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, सीट्स आर अलॉटेड टू द डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ देयर। यानी कि आप सुनते होंगे कि इतने सीट्स है लोकसभा में, इतने सीट्स जीते, इतने सीट हारे, तो इस तरह से तो यहाँ पर सीट अलॉट किया जाता है डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑप्शंस आर गिवन हियर स्टूडेंट्स, एरिया यानी कि स्टेट्स की एरिया के बेसिस पर दिया जाता है, दूसरा स्टेट्स की लोकेशन के बेसिस पर दिया जाता है, तीसरा स्टेट्स के पॉपुलेशन के बेसिस पर दिया जाता है, या फिर चौथा ऑप्शन नंबर 4 डेवलपमेंट के बेसिस पर दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, नंबर ऑफ सीट गिवन टू दी स्टेट्स और दी यूनियन टेरिटरीज इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो मैं आपको बता दूं पॉपुलेशन हमारा इंडिया का जो यूपी स्टेट है यानी कि उत्तर प्रदेश, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट भी है, वहाँ 80 सीट्स है किसका? लोकसभा का। बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और यह है आपका विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सीट्स इन द लोकसभा? यानी कि इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा सीट्स है? अभी मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश 80 सीट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ लोकसभा? यानी कि मेंबर ऑफ लोकसभा को कौन इलेक्ट करता है? पहला ऑप्शन पीपल, दूसरा ऑप्शन पार्लियामेंट, तीसरा ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, चौथा ऑप्शन प्रेसिडेंट। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, मेंबर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल, जनता, जनता जनार्दन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज का क्या मतलब है? आप इससे क्या समझते हो? पहला ऑप्शन, ऑल द सिटीजन्स ऑफ एज 21 एंड अबव हैव राइट टू वोट। यानी कि जितने भी सिटीजन्स है भारत के 21 साल या फिर इससे ऊपर वाले एज वाले को राइट है कि वो वोट दे सकते हैं, ये है। दूसरा ऑप्शन, ऑल द सिटीजन्स एट द एज ऑफ 18 एंड अबव हैव राइट टू वोट। यानी कि भारत का हर एक नागरिक जो 18 साल का है या फिर उससे ऊपर वाला एज का, यानी उससे ऊपर वाले जो उम्र के लोग हैं वो वोट दे सकते हैं, उनको वोट देने का हक है, राइट है। तीसरा ऑप्शन, ऑल द सिटीजन्स एट एनी एज ऑफ इंडियन, इट मीन्स इसका मतलब कि भारत का कोई भी सिटीजन्स किसी भी एज का हो, भले ही वो दूध पीता बच्चा हो, भले ही वो बूढ़ा हो, भले ही वो 5 साल का 10 साल का, हर कोई वोट दे सकता है, ये है। या फिर नन ऑफ द, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज का मतलब बच्चों होता है ऑल द सिटीजन एट द एज ऑफ 18 years एंड अबव हैव राइट टू वोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज अ क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा? इनमें से कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए? पहला ऑप्शन, ही शुड बी इंडियन सिटीजन, यानी कि वो इंडिया का एक सिटीजन होना चाहिए। ही शुड बी एटलीस्ट 25 years, यानी कि उसका एज जो है एटलीस्ट 25 years का होना चाहिए। तीसरा, यू शुड नॉट, और ही शुड नॉट, एक्चुअली ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। और चौथा, ऑल दी अबव। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये तीनों का तीनों जो क्वालिफिकेशन है वो मेंबर ऑफ लोकसभा का है, इसीलिए
ऑल दी अबव विल बी दी करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन अमंग दिस इज ए डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि इसमें से कौन सा फीचर है जो कि किसी एक व्यक्ति को क्या करता है, डिस्क्वालीफाई कर देता है मेंबर ऑफ लोकसभा बनने से। पहला ऑप्शन, इफ हिज एज इज मोर देन 50 ईयर्स, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप 25 ईयर्स से ऊपर हो तो आप किसी भी एज में आप मेंबर ऑफ लोकसभा बन सकते हो। दूसरा, इफ हिज नेम इज इन इलेक्टोरल रोल इन एनी पार्ट, एक्चुअली ये तो एक क्या है, क्वालिफिकेशन का एक क्या कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा तीसरा, इफ ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी नहीं हो सकता। और ऑप्शन नंबर 4 है चौथा, सो ऑप्शन नंबर 4, इफ ही इज अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर्ड सो बाय द एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट दिस इज द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा। Now students, next question number 20, what is the term or tenure of the Lok Sabha? It means office of the Lok Sabha. First option 3 years, second option 4 years, third option 5 years, and fourth option 6 years. So students, here tenure or the term of the office of the Lok Sabha is 5 years. Okay, so third option is the correct answer. Next question students, question number 21 students. But before starting this question, students, if you have not subscribed our channel till now, and if you are new to the channel, please subscribe it and press the bell icon so that you can get all the videos on time. So here question number 21, name the state which has least number of seats in the Lok Sabha, यानी कि स्टेट, उस स्टेट का नाम बताइए जो करेंटली जहां पर सबसे कम सीट है, यानी कि जिस स्टेट में लोकसभा का सबसे कम सीट है। पहला ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन नागालैंड, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन सिक्किम। तो बच्चों यहाँ पर उत्तर प्रदेश तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा का सीट्स है। तो इन तीनों में से ही कोई है बच्चों। तो मैं आपको बता दूं, ये है आपका नागालैंड। क्या? नागालैंड। इसके अलावा भी एक और स्टेट है जहाँ पर केवल एक ही सीट्स अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 है नंबर ऑफ सेशंस इन द पार्लियामेंट इन ईयर, यानी कि एक साल में कितनी बार सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 6। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, नंबर ऑफ सेशंस इन द पार्लियामेंट इन ईयर इज 3 सेशंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन इज द बजट सेशन हेल्ड इन द पार्लियामेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों कि पार्लियामेंट में 3 सेशंस होते हैं। एक होते हैं आपका बजट सेशन, दूसरा होते हैं आपका समर सेशन, और तीसरा है आपका समर सेशन या फिर उसे मॉनसून सेशन कहते हैं, मॉनसून सेशन एक्चुअली, और तीसरा है आपका विंटर सेशन। ठीक है, तो इनमें से बजट सेशन कब हेल्ड होते हैं? पहला ऑप्शन है फरवरी एंड मार्च, दूसरा ऑप्शन है जुलाई टू सितंबर, यानी जुलाई से लेकर सितंबर तक, तीसरा ऑप्शन नवंबर से लेकर दिसंबर तक, और चौथा ऑप्शन है पूरे साल भर। तो बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज हेल्ड इन बच्चों फरवरी एंड मार्च। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24, हु कंट्रोल द एक्सिक्यूटिव, यानी कि एक्सिक्यूटिव को कौन कंट्रोल करता है? पहला पार्लियामेंट, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा, और चौथा ऑप्शन है आपका प्रेसिडेंट। फर्स्ट ऑप्शन पार्लियामेंट, सेकंड ऑप्शन लोकसभा, थर्ड ऑप्शन राज्यसभा, एंड फोर्थ ऑप्शन प्रेसिडेंट। ओके, सो व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स हियर? हु कंट्रोल द एक्सिक्यूटिव? सो this question is for you. Okay, so you have to give the correct answer. Now next, question number 25, and this is the final question from this video. In next video we will continue with question number 26. Okay, so here question number 25, who elects the speaker of the Lok Sabha, यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा को कौन इलेक्ट करता है? पहला ऑप्शन पार्लियामेंट, दूसरा ऑप्शन राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन लोकसभा, एंड चौथा ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट। सो स्टूडेंट्स, हियर योर करेक्ट आंसर इज हु elect the speaker of the Lok Sabha. Your correct answer is third option, Lok Sabha. Okay, Lok Sabha elect the speaker of the Lok Sabha, and even deputy speaker of the Lok Sabha is also elected by the Lok Sabha. Okay, so students, this much from this video. We will continue in another video from question number 26. So till then, take care.